गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आप बताइए, व्हाई अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन? क्यों कर रही है? अर्थ जब रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स सर्कुलर मोशन। तो कहाँ से मिल रही है वो सर्कुलर मोशन? दैट इज provided by gravitational force of attraction between earth and sun. So imagine distance between earth and sun कितना ज़्यादा है, but in spite of that very large distance there is gravitational force of attraction. So what is the meaning of this? क्या मतलब है इसका? जब इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने पे भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लॉन्ग रेंज फोर्स। और अब ये जो रीजन है, उस रीजन को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ बॉडी विद इन विच other bodies can experience gravitational force of attraction. मान लीजिए कि मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस बॉडी. तो वी विल कंसिडर दिस इज द स्पेस सराउंडिंग बॉडी ऑफ मास m. नाउ इफ another body is placed at this very point P, this body of mass small m is placed at this point P, so it will be attracted towards this. अगर ये बॉडी यहाँ पर है, even then it will experience this force of attraction. तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ बॉडी within which it can attract other bodies towards it, or you can say the space within which other bodies can experience force of attraction. Now next point is, what is gravitational field intensity? यानी कि we want to see strength of gravitational field at a point. कि हमने कह दिया कि ये इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी. सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by a body of unit mass placed at that point. जैसे suppose कर लीजिए, now this is body of mass m. So this is the gravitational field. Now we want to calculate what will be gravitational field intensity at this point P. Gravitational field intensity at point P due to the field which is developed due to this body. So we consider that if a body of unit mass is placed at this point P, then how much force is experienced by this body? That is known as intensity of gravitational field. So obviously gravitational field intensity is a vector quantity and this direction इसकी किस तरफ होगी? It will be always towards the body. This body की वजह से field develop हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा उस बॉडी की तरफ होगी. And now what will be the units? Newton per kilogram. क्योंकि फोर्स होगी न्यूटन, तो हमने कहा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, यानी कि फोर्स पर यूनिट मास, तो इसलिए यूनिट्स बन गए न्यूटन पर किलोग्राम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at any point on the surface of earth
is equal to acceleration due to gravity. यानी कि हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं. Now we are considering this is the earth, which is a perfect sphere of mass m and radius r. Whole mass of earth is supposed to be concentrated at its center. Now we want to calculate that what will be gravitational field intensity at this very point P. Point P के ऊपर कितनी field intensity है? So हम क्या consider करेंगे? We will consider that the unit mass is placed at this very point P. P point के ऊपर unit mass है. तो अगर P point के ऊपर unit mass है, तो इसमें कितनी इंटेंसिटी बनेगी ग्रेविटेशन फील्ड की? G m1 by r स्केयर. क्योंकि आपने क्या लेना बेटा? फोर्स. फोर्स किसके बीच में? बॉडी, जिसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा क्या है? यूनिट मास. तो हमें अब क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो इसलिए हमने जो यूनिट मास कंसिडर करना है, किस पॉइंट पे कंसिडर करना है? अर्थ के सरफेस के ऊपर. तो डिस्टेंस जो है, आप चाहे यहाँ से लो, यहाँ से लो, ये डिस्टेंस क्या बनना है? r के बराबर. तो फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विल बी g mass of the body, that is earth, unit mass divided by distance between the two, that is r square. So this is equal to g. तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द surface of earth is taken to be equal to acceleration due to gravity. Now after this, we want to discuss certain points about this gravitational field intensity. हम बेटे अब कुछ पॉइंट डिफरेंट पोजीशंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में करेंगे. नंबर 1 कि इफ यू आर कंसिडरिंग अ रिंग, क्या कंसिडर कर रही हो? एक रिंग कंसिडर कर रही हो. तो हम मान लीजिए कि एक रिंग है जिसका m मास है, r रेडियस है. अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r. तो हम इसमें देखना चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ रिंग. कहां पर? सेंटर ऑफ रिंग पे. तो बेटा दिस विल बी इक्वल टू 0. अब ये कोई क्रैम नहीं कर लेना, हाँ भी 0 होगी. क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिंग है क्या है? हॉलो सर्कल. होल मास ऑफ रिंग, दिस मास m, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस. तो बच्चे जब अंदर मास ही नहीं है तो फील्ड कहाँ से आएगा? फील्ड इंटेंसिटी कैसे बनेगी? तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग विल बी 0. सेकेंड, वी आर कंसिडरिंग, लेट अस से दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC. Now equal masses are placed at each corner of the triangle. अब मान लीजिए कि हर एक साइड की L लेंथ है और हर कॉर्नर के ऊपर M मास है. तो now we want to calculate that what will be gravitational field intensity at the center of the triangle. Center of triangle हम कैसे निकालेंगे? By taking bisectors. तो ये bisectors इस पॉइंट के ऊपर जा करके मीट कर रही हैं. तो we want to calculate here that what will be gravitational field intensity at this very point O. कितनी होगी? कैसे देखेंगे? देखो बेटा, इस O पॉइंट पे देखनी है. अब इसमें ये हो गया कि पॉइंट O के ऊपर जो फील्ड एक्ट कर रहा है, that will be due to this mass m, due to this mass m, due to this mass m. So that means you can say that gravitational field intensity
at point O will be the vector sum of gravitational field intensity at O due to mass at A, due to mass at B and due to mass at C. No doubt field intensity is a vector quantity, तो हम इनका क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे. अब पहले इनकी मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं. अब देखो बेटा ये साइड L है तो ये बाइसेक्टर है, तो दैट मीन्स दिस इज L/2. ये क्या है, L है. तो आपके पास ये वाली साइड जो है AD क्या बनेगा, L² माइनस L/2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट. ठीक है ना. इट विल बिकम L² माइनस L² by 4, तो इट विल बी 3L² by 4 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 3 L/2. अब उसके बाद आपको इसमें पता है कि दिस मीडियन बाइसेक्ट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो इसके दो पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, तो दैट मीन्स OA विल बी 2/3 ऑफ AD. तो इट विल बी 2/3 अंडर रूट 3 L/2, तो इट विल बी L by अंडर रूट 3. सो दैट मीन्स इसमें OA, OB और OC डिस्टेंस आपके पास बन गया L by अंडर रूट 3. तो अब अगर आप इसमें देखना चाहते हो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू A, तो मैग्नीट्यूड देखो G M और O पॉइंट पे यूनिट मास, डिस्टेंस इज L by अंडर रूट 3. इसका आपने क्या लेना है, स्केलर. तो ये क्या बन गया बेटा, GM by L² अंडर रूट 3 का स्क्वायर ऊपर जाके 3 हो जाएगा. सो दैट मीन्स इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 3GM by L². और ये किस तरफ को एक्ट करेगी, आप किस पॉइंट पे ले रही हो बेटा, O पॉइंट के ऊपर. तो यूनिट मास कहाँ पड़ा है, यहाँ पर है ना. और ये अब यूनिट मास किधर को अट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर को. इस पे देखना है ना, इसकी तरफ जाएगा. तो दैट मीन्स दिस विल बी दी डायरेक्शन. ये डायरेक्शन बन गई, वैल्यू 3GM by L². अब अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे बेटा, अब ये अलोंग किधर हो गया, OA. अब मैग्नीट्यूड तो बच्चे ये भी इतनी बनेगी और C की वजह से भी सेम बनेगी, है ना. अब ये किस तरफ को जाएगा, O से B की तरफ, ये O से C की तरफ. सो दैट मीन्स दीज आर द 3 वेक्टर्स acting along OA, OB and OC, and these are equal in magnitude. तो अब आप देखो ये एंगल बच्चे कितना है, 30 डिग्री, ये भी 30, तो ये कितना बन गया, 120 डिग्री. अब ये देखो ये दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के और इनके बीच में एंगल कितना है, 120. तो याद है रिजल्टेंट क्या बनती है, सेम है ना. इफ R is equal, P is equal to Q and angle between the two is 120, तो R की वैल्यू भी सेम बन जाती है. अब वो किस तरफ को आएगी, इस तरफ को. अब इस तरफ को कितना है, 3GM by L², ऊपर कितना है, सेम. तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या बन गई, 0. सो बेटा एक चीज अब हमेशा याद रखिए कि आप अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो और वहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड्स का इम्पैक्ट आ रहा है, तो यू विल कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट वेरी पॉइंट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल मास, ड्यू टू ईच इंडिविजुअल फील्ड, और उसके बाद आप उनका वेक्टर सम लोगे. तो ये जो मैथ्स की है ये मैंने सिंपली डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए लिया कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस OA, OB एंड OC. ये मैथमेटिक्स हमने लगा दिया और उससे ये डिस्टेंसेस हमारे पास आ गए L by अंडर रूट 3. उसके बाद जब हमने फील्ड इंटेंसिटी देखनी है
तो उसके लिए हमने लिया Gm1m2/r²। सिंपल, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें अब एक मास 1 है, दूसरा m है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड हर एक में सेम आ गया। तो ये हमारे पास 3 इंटेंसिटीज की वैल्यू बन गई। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट की कि ये 2 वेक्टर्स ले लिए, इनके बीच में ये एंगल 120 डिग्री है, तो इसलिए जो रिजल्टेंट डायगोनल बनेगा इस तरफ को, तो उसकी भी सेम मैग्नीट्यूड होगी। और फिर ये ऊपर है उतना ही, ये नीचे है, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या बन गया? 0। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at the center of equilateral triangle, when m is the mass at each of the corner, that comes out to be 0। तो इस तरीके से हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम कंसिडर करते हैं एक हॉलो स्फीयर। सो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल field intensity, gravitational field intensity due to hollow sphere of mass m and radius r। सो दैट मीन्स ये आपके पास एक हॉलो स्फीयर है इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। इसका रेडियस r है। तो अब सॉरी, तो अब पॉइंट ये आता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आप कहाँ देखना चाहते हो। अब हम ले रहे हैं एट एनी पॉइंट आउटसाइड स्फीयर। स्फीयर से बाहर किसी भी पॉइंट के ऊपर, विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट P है, तो ये सेंटर से इसका डिस्टेंस है स्मॉल r। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट P के ऊपर इस स्फीयर की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। फील्ड, ये स्फीयर का मास है ना, तो उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी लेनी है। तो बेटा इट विल बी Gm/r², क्योंकि आप यहाँ पर कितना मास कंसिडर करोगे? 1। अब एक बात मेरी अब ध्यान से सुनो, नो डाउट जब ये हॉलो स्फीयर है तो इनसाइड स्फीयर देयर इज नो मास, कोई मास नहीं है। बट जब बेटा आपने कैलकुलेशंस इसमें इस तरीके से करनी है, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि मान लो ये जो सारा मास है कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गया? यहाँ पर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने लिखा। अब दूसरा, एट एनी पॉइंट इनसाइड स्फीयर। अगर स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है तो फिर बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी? 0, क्योंकि अंदर मास ही नहीं है। मास इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। हॉलो स्फीयर है, आपके पास एक बॉल है, बॉल अंदर से हॉलो है, तो मास कहाँ है? पूरे का पूरा सरफेस के ऊपर है। तो इसलिए gravitational field intensity inside hollow sphere will come out to be 0। Now आपको अगर ये कहा जाए कि आप ग्राफिकली शो करिए, तो आप एक्स एक्सिस की तरफ क्या ले रहे हो? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर से, और इस तरफ को आप क्या ले रहे हो?
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इस तरफ क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास ये वैल्यू अब क्या आएगी बेटा? द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये का यहां पर स्मॉल आर कितना होगा? रेडियस। सो दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो inside sphere. It will be maximum on the surface of sphere and it will go on decreasing inversely proportional to square of the distance जैसे जैसे outside the sphere आएगा। तो बेटा ये पॉइंट आपको एक एक नंबर में भी आ सकते हैं। अब आप कहोगे एक नंबर में डेरिवेशन नहीं। आपने जब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया उसके बाद तो बेटा आपको सिंपली ये कहा जा सकता है कि यू शो इट ग्राफिकली। आपको सिंपली पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो स्फीयर। तो इसलिए आपने चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपने पास नोट्स बनाइए, उनको देखिए। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल field intensity due to solid sphere। किसकी वजह से? solid sphere की वजह से। Again we are considering that sphere is of mass m and radius r। अब जब मैं डायग्राम में बनाऊंगी sphere तो ऐसे ही बनना है, पर जब मैं कह रही हूँ this is solid sphere, it means that mass is uniformly distributed over whole of its volume। अब इसमें देखिए बच्चे, if you want to calculate gravitational field intensity at any point outside the sphere, at any point outside sphere, तो उसमें आप क्या देखोगे कि जो पॉइंट है किस डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर। दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो ये है पॉइंट पी, तो इसका जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो हमने अब इसमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आपके पास ये इंटेंसिटी कितनी बनेगी? gm by r square। किस तरफ को डायरेक्शन होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्योंकि इसके ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज ड्यू टू होल ऑफ द मास ऑफ द स्फीयर। तो इसमें कोई फर्क नहीं whether you are taking it for hollow sphere or solid sphere, क्योंकि सारे के सारा मास आ रहा है। अब इस केस में how will you calculate gravitational field intensity at any point inside a sphere, अंदर स्फीयर के अंदर इसमें आप कैसे लोगे कि मान लीजिए दिस इज पॉइंट पी, अब यहां पर है। अब बेटा जब मैं ये कह रही हूं कि होल मास इन दिस केस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो आप एक चीज इमेजिन करिए कि अगर मैं यहां पर यूनिट मास रख रही हूं एट दिस वेरी पॉइंट पी, तो इसके ऊपर टोटल मास तो नहीं ना स्फीयर का आ रहा है कि मान लीजिए मैं इसको ये मान लूं लाइक दिस, तो ये रेडियस आर हो गया है ना। अब ये जो स्फीयर का मास है ये तो बाहर निकल गया, इसका थोड़े इम्पैक्ट होगा। पॉइंट फिर देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूं कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी के ऊपर ले रहे हैं विच इज इनसाइड स्फीयर, तो अब उस पॉइंट पी के ऊपर टोटल मास ऑफ द स्फीयर विल नॉट बी एक्टिंग। इसके ऊपर जो ये मास इधर शेल का निकल गया
वो इनइफेक्टिव होगा। इसका मतलब कि जब मैं इसमें E की वैल्यू लिखूंगी, आई विल से gm dash by r square. M dash will be the effective mass of the sphere, which will be acting on this very point P. On this point P where the unit mass is placed. तो अब M dash कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल मास कितना है? M, which is uniformly distributed over the whole of volume. तो ये क्या बन गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास कितने रीजन में लेना है? इतने रीजन में। तो इस रीजन का कितना वॉल्यूम हो गया? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स एम डैश विल बी एम आर क्यू पाई कैपिटल आर क्यू। तो इसका मतलब ई क्या बन गया? जी एम आर क्यू बाय आर क्यू, और ये बन गया आर स्क्वायर। ठीक है ना? एम डैश क्या है? आर क्यू बाय, तो ये आपके पास आ गया जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर। तो यहां से देखो ये चीज तो कांस्टेंट है ना। एम द मास ऑफ सफियर, आर द रेडियस ऑफ सफियर। तो इसका मतलब कि इसमें जैसे जैसे सेंटर पे वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे जैसे ये बाहर को जाएगा इस तरफ को, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। कहाँ जाके मैक्सिमम होएगी? यहाँ पर। फिर बाहर डिक्रीज होने लगेगी। सो दैट मीन्स if we want to explain it graphically, on this side we are taking small r. Small r क्या है बच्चे? Distance of point P from center of sphere. ठीक है? और इस साइड पर है E इंटेंसिटी। तो पहले आपके पास यूं स्ट्रेट लाइन आएगी। Here E is directly proportional to r. कहाँ? Inside the sphere. तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, और उसके बाद ये यूं ऐसे बनेगी। ठीक है? तो बेटा इस तरीके से आपको हॉलो स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर में, रिंग में, डिस्क में, ट्राइंगल में, किसी भी सिचुएशन में कैसे फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, इसके बारे में मैंने आज सारा आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके इस तरह की और प्रॉब्लम्स को लेकर के डिस्कस करिए। सो नाउ आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के बाद, इसको व्यू करने के बाद आपको पसंद आती है तो प्लीज़ यू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।